نہیں، میں مارچ میں آیا تھا 11 مارچ کو. تو اس مارچ سے لے کے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزوں کو ہم نے آگے بڑھایا ہے. جو پہلے ہماری جو ریفارم ایجنڈا تھی جس پہ ہم کام کر رہے تھے اس کو ہم نے کنٹینیو کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ڈپارٹمنٹ جو تعلیم کا محکمہ ہے، وہ چاہے وہ اسکول ہو یا کالج ہو، اس میں مستقل اور مسلسل ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ریفارم ایجنڈا ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے یا مکمل کر لیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں اس سمت میں چلنا ہے، اس ڈائریکشن میں چلنا ہے جہاں پہ ہم بہتری لا سکیں. آپ دیکھیں کہ اچھے اساتذہ، میرا ہمیشہ اس بات پہ ایمفیسس رہا ہے کہ جو تعلیم ہے اس کا فروغ تب ہو سکتا ہے، اس کی بہتری تب ہو سکتی ہے جب اچھے اساتذہ ان کو میسر کیے جائیں. اچھے اساتذہ کے بغیر آپ کتنی بھی بلڈنگز بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، مگر اگر اچھے اساتذہ نہیں ہوں گے تو آپ کا یہ پورا جو سلسلہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. ہم نے 65,000 سے بھی ابھی زیادہ نمبر آئے گا جو ٹیچرز اسکول ایجوکیشن میں ہم نے ریکروٹ کیے تھے میرٹ پہ. اس کا صلہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں پورے سندھ میں سائنس ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں. سائنس ان سندھ کے نام سے ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال کو ہم سائنسی سندھ کے طور پہ ہم منائیں گے کہ بچوں کی سائنٹیفک اورینٹیشن ہو. سائنس جو ہے وہ سوال کرنا سکھاتی ہے. فلسفہ اور سائنس کی خوبی ہے سوال کرنا سکھاتی ہے. بچے میں جب تک سوال کرنے کی صلاحیت اجاگر نہیں ہوگی، وہ ڈیولپ نہیں ہوگی، تو بچہ سیکھ نہیں پائے گا. ابھی میں مٹھی گیا تھا، آپ وہاں پہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ جہاں پہ پرائیویٹ اسکولز اور آپ کے تھر فاؤنڈیشن اور آپ کے داؤد فاؤنڈیشن کے بچے بھی تھے، مگر وہاں پہ ہمارے اسکولز کے جو تھر کے اتنے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے جو بچے تھے اسکولز کے، وہ بھی موجود تھے. مگر ان کے آپ ماڈل دیکھتے آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے ان بچوں کی یہ سائنسی پرورش کس نے کی ہے، یہ کس طرح یہ تخلیقی صلاحیت ہے جو ہم اجاگر کرنے جا رہے ہیں. ہم لا رہے ہیں ابھی آج کوئی 1600 کے سے زیادہ جو ہے وہ ٹیچر، 1650 کے قریب، 1669 کے سر قریب آج ہم تک 1560 ہیں اور اس میں آج 833 کو ہم ڈسٹریبیوٹ آج وہ دے رہے ہیں. تو پہلے 1500 کی ہم پہلے ریکروٹمنٹ کر چکے ہیں لیکچرز کی. جو ہمیں اساتذہ کی جو ضرورت تھی کالجز میں اس کو ہم میٹ کرنے کے لیے یہ لا رہے ہیں. اب یہ میں سمجھتا ہوں نصاب کی جو ہے اس کا کام جاری ہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ٹیکسٹ بکس جو ہے وہ بن جانے کے بعد وہ حتمی نہیں ہوتے. یہ ہر سال ریویو ہونے چاہیے، ہر 5 سال کے بعد سلیبس ریویو ہونا چاہیے، ہر 10 سال کے بعد کریکولم ریویو ہونا چاہیے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں، مگر ہمیں یہ کام جلدی جلدی کرنا پڑے گا کہ ہم اس لائنز پہ لے کے آئیں. ٹرانسجنڈر ایجوکیشن پالیسی وہ ابھی تیار ہو چکی ہے، وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. کلسٹرنگ جو ہے وہ اس سال امپلیمنٹ ہو جائے گی اور ہمارے کوئی 16.5 سے زیادہ اسکول سائٹ پہ کلسٹر بن جائیں گے کہ ہم ڈی سینٹرلائز کریں گے کہ 18 سے 20 22 25 میکسیمم 35 ایک اسکول ایک کلسٹر میں ہوں گے. اب کلسٹر کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے میں 41,000 اسکول جو ہے وہ 374 کالجز جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے میں ایک دم نہیں دیکھ سکتا. اس کو ہمیں کلسٹرنگ میں لانا پڑے گا کہ ان کو اختیارات نچلی سطح تک ہم منتقل کریں. یہ ٹی اوز کی پوسٹیں اور فضول جو ڈی اوز کی پوسٹیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی. ابھی 8 ڈی اوز ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر 8 کے رکھنے کا کام کیا ہے؟ وہ اسکول میں جائیں، وہ وہاں جا کے پڑھائیں. تو یہ پوری ریفارمز کی چل رہی ہے ایجنڈا، اس پہ ہمارا کام جاری ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں جی دیکھیں میں آپ کو میں بتاؤں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پورے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ 2 کروڑ 60 لاکھ کے قریب پورے پاکستان میں بچے اسکول سے باہر ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب بچے پنجاب میں باہر ہیں. 56 لاکھ کے قریب بچے ہمارے سندھ میں اسکول سے باہر ہیں. مگر وہ جو ڈیٹا ہمیں دیتے ہیں پلاننگ کمیشن والے اور جو شماریات والے، وہ دیتے ہیں کہ 78 لاکھ بچے آپ کے اسکول سے باہر ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بھائی پنجاب میں پرائیویٹ اسکولز کی سینسس نہیں ہے، کے پی میں پرائیویٹ اسکولز کی سینسس نہیں ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جس میں ہم نے 22-23 میں پرائیویٹ اسکولز کی پروفائلنگ کی اور سینسس کروایا. ہمیں ایگزیکٹ فگر کا پتہ چلا کہ سندھ میں کتنے بچے اسکولز میں انرولڈ ہیں. اگر وہ آپ نکال لیں تو 55 لاکھ سے زیادہ بچے نہیں ہوتے. میں ہی نہیں کہتا کہ سندھ میں آؤٹ آف اسکول بچے نہیں ہیں، بھی 55 لاکھ بھی بہت بڑا تعداد ہے. ہمیں ان کو لانا ہوگا. اب اس کے حوالے سے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہمارا ہے نان فارمل ایجوکیشن.
नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम जो वो ALP सेंटर्स खोल रहे हैं, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, 500 सेंटर्स अभी खोल रहे हैं हम, और मज़ीद जो है हमारे कोई 3000 के करीब सेंटर जो है आइंदा 1-2 सालों में हम वहाँ पे करेंगे। वो है वो बच्चा जो स्कूल जाने की एज क्रॉस कर चुका है, अब उसको हम जो है वो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम पे पढ़ाएंगे कि वो 5-6 साल का जो कोर्स है वो 2 साल में या 3 साल में कंप्लीट करे। एलिमेंट्री जो है वो 2 साल में कंप्लीट करे कि बच्चा वापस आके अगर फार्मल में जाना चाहे तो वो फार्मल में आ सके। दूसरा टेक्निकल एजुकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम अब इस पे काम कर रहे हैं कि हम मिडिल टेक, मैट्रिक ट्रैक और इंटर ट्रैक, ये हम टेक्निकल एजुकेशन की स्ट्रीम मुतारफ़ करवा रहे हैं क्योंकि हम बच्चे को ज़बरदस्ती हम क्यों कहें कि तुम्हें बैचलर्स करनी है और मास्टर्स करनी है। अगर बच्चा मैट्रिक करने के बाद वो टेक्निकली जाके ऑप्ट करता है कोई भी स्ट्रीम, वो जाके अपनी ज़िंदगी का काम शुरू करे। तो इस पे भी हमारा काम चल रहा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट वो अपग्रेडेशन है। ये पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज तक ये बदकिस्मती से कोई एक सूबे की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में एजुकेशनल पॉलिसीज़ का मसला है। 47 से लेके हमने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि बच्चे को 5वीं के बाद 6ठी में भी जाना है, 8वीं के बाद 9वीं क्लास में भी जाना है। हमने क्या किया कि पंजाब में 36,000 प्राइमरी स्कूल्स, हमारे यहाँ भी 36,000 प्राइमरी स्कूल्स, और पोस्ट प्राइमरी स्कूल का नंबर पंजाब में हमसे ज़्यादा है, हमारा नंबर कम है। तो हम अब जा रहे हैं अपग्रेडेशन पे, स्कूल्स की अपग्रेडेशन पे। जो प्राइमरी स्कूल जहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे प्राइमरी में मौजूद हैं उसको हम अपग्रेड करके एलिमेंट्री, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर उसको हम दे दें, क्योंकि हमारे पास JST बहुत सारे आ चुके हैं अभी। और मज़ीद जो है हम रिक्रूटमेंट जो करने जा रहे हैं वो जूनियर एलिमेंट्री, जो जूनियर साइंस टीचर हम लेने जा रहे हैं। म्यूज़िक टीचर जो है वो अनकरीब अभी MD-CAT से IBA वाले फारिग हुए हैं, तो अभी वो जाएंगे उनके इंटरव्यूज़ के लिए, म्यूज़िक टीचर्स के और आर्ट टीचर्स के। और मज़ीद जो हमें टीचर्स की जो डिफरेंट कैडर्स हैं वो हम देखेंगे असेसमेंट की बुनियाद पे कि हमें ज़रूरत किस सब्जेक्ट की है। अब सब्जेक्ट वाइज हम जाएंगे। कॉलेज साइड पे भी यही सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, मैंने यही उनको अहकाम दिए हैं कि आप कॉलेज स्पेसिफिक हम रिक्रूटमेंट पे जाएं आगे, स्लोली ग्रेजुअली। अब मुझे आप बताएं, कीमे जो पार वो बॉर्डर के करीब एक कॉलेज है, वो मैं कॉलेज कैसे चलाऊँ? हमारे यहाँ कॉलेज ऐसे बन गए विदाउट फिजिबिलिटी स्टडी करने के, उसको वो देखने के बजाय हमने किए। कई तहसील हेडक्वार्टर में कॉलेज नहीं है हमारे पास, हम वो कॉलेज अब न्यू बजट में हम देने जा रहे हैं जहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा मदारिस का इशू चल रहा है, तो क्या महकमा तालीम सिंध जो है वो रजिस्टर्ड करेगा मदारिस? देखिए ये पॉलिसी अब हमें डाउन नहीं हुई है ऊपर से, अब फेडरल मिनिस्ट्री उसको टैकल कर रही है और वहाँ पे जो मजहबी सियासी तंजीमें हैं उनके अपने अपने मौक़िफ़ हैं। अब ये बात जब क्लियर हो जाएगी, पॉलिसी आएगी, तो फिर मैं इस काबिल हूँगा कि आपको मैं बता सकूँ। हमेशा बात करते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे टीचर्स लेकर आ गए, मगर जब हम स्कूलों की हालत देखते हैं, सैलाब को गुजरे हुए भी 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक आप ये कहते रहते हैं कि सैलाब गुजर गया, सैलाब की वजह से ऐसा हो गया। 20% स्कूल ऐसे हैं 40,000 में से जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, हाथ धोने की जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो किस तरह से वो पढ़े लिखे टीचर्स या वालिदैन क्यों अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे? देखिए भाई, कराची में भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की सूरत है। जी मैंने कब इससे इनकार किया है? मैंने असेंबली से फ्लोर से लेके आपसे गुफ्तगू करते हुए हमेशा इस बात को तस्लीम किया है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैलेंज है। 20,000 स्कूल आउट ऑफ 41,000 स्कूल्स में से आपके अगर सैलाब में मुतासर हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, इतने वसीले आप मुझे दिखाएं, हम कहाँ से वसीले लाएं इतने स्कूल बनाने के लिए? अब सैलाब तो कुदरती आफत है, वो जब जो ऑलरेडी स्कूल खस्ता हाली का शिकार थे, जब बारिशें हुई तो वो मज़ीद ख़त्म हो गए स्कूल। अभी हमने कोशिश की, मेरे चेयरमैन बिलावल साहब, CM साहब ने भी डोनर कॉन्फ्रेंसिस में शिरकत की, उनको अपील की। हम आज तक कोई 3,500 के करीब स्कूल अभी तक ले पाए हैं। 16,500 स्कूल्स का बैकलॉग अभी भी पड़ा हुआ है। ये मैं मानता हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जब फेडरल हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं ना कि आप इमरजेंसी का नफाज तो प्राइम मिनिस्टर साहब कर देता है, मगर आप PSTP में स्कूल्स के लिए आप कितने पैसे रखते हो? अभी उन्होंने कमिटमेंट की है कि हमें कोई वो 10 अरब रुपये, 5 अरब सिंध गवर्नमेंट के 5 अरब वो देंगे, उसमें से हम स्कूल उठा रहे हैं PSTP में जो बनाने के लिए, मगर वो कोर्ट का जो है वो स्टे आड़े आ गया है। अब मैं कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जज साहिबान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा काम है वो आप हमें करने दें, अपना काम है आप करें। अब हम कैसे स्कूल बना पाएंगे?
अब ये पीएसडीपी के अभी तक लटके हुए, अभी टेंडर होते, प्रोसेस होते, तो इस साल कम से कम ये होता कि कुछ ना कुछ स्कूल जून तक बन पाते और नेक्स्ट ईयर में स्कूल बनते। शाह साहब, एक्टिव स्कूलों की तादाद क्या है, एग्जैक्ट नंबर बता सकें उसके अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं और वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ भी? जी, अभी तक जितने हमने जो नॉन वायबल स्कूल थे, जो आप कह रहे हैं ना, जो नॉन एक्टिव स्कूल थे या नॉन फंक्शनल स्कूल थे, वो हमने कोई 5,500 के करीब लिस्ट थी, वो हमने पहले ही निकाल दी थी। उसकी फिल्ट्रेशन का अमल चलता रहा, हमने इश्तिहारात भी दिए, सोशल मीडिया पे भी रखा कि किसी को भी कंप्लेन हो तो आके हमें बताए कि भाई ये स्कूल मेरी वायबल है, नॉन वायबल नहीं है, टीचर ना होने की वजह से बंद थी। अभी देखें कि टीचर आने के बाद सारी जो भी वायबल स्कूल्स थी वो सारी ओपन हो चुकी है, माँ सिवाय जहाँ कोर्ट का स्टे था, कौन सा डिप्राइव्ड तहसील में, जो तहसील हमारे 20 के करीब जो डिप्राइव्ड थे, वहाँ पे स्कूल कुछ बंद थे। क्या? कितने स्कूल हैं जो एक्टिव हैं? जी, वो 41,000 स्कूल, हमारे 40,800 और समथिंग स्कूल्स जो हैं वो एक्टिव स्कूल्स हैं। वहाँ पे एसटीआर का इशू था, जिसको अभी एसटीआर प्लान में एड्रेस किया जा रहा है। वहाँ पे स्कूल ओपन है, यानी ये एसटीआर का ये था, मैं आपको बताऊँ, स्टूडेंट टीचर रेशो, जहाँ पे 100 बच्चे थे वहाँ पे एक टीचर था, तो हम उनको 2 मजीद टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं कि 30 बच्चों पे एक टीचर हम वहाँ पे रख पाए। शाह साहब, ये बताइएगा जिस तरह आपने फरमाया कि अदालती कार्रवाई मुदाखलत होती है और डिपार्टमेंट के काम रुकते हैं, अदालत सिंध गवर्नमेंट के मामलात में क्यों मुदाखलत करती है और क्यों सिंध गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर है कि अपना केस नहीं पेश कर पाती जजेस के सामने? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, ये कमज़ोर और ताकतवर होने की बात नहीं है। वो जज साहिबान की मर्ज़ी है कि वो कोई भी डिसीजन दे दे, मगर मेरा ये काम है कि जो इंतज़ामी मामलात हैं उसमें पहले सुना जाए, स्टे देने से पहले हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। हमारे एडवोकेट जनरल भी जाते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी जाते हैं, कहीं पे हमारे अपने लीगल एडवाइज़र हैं और डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी जाते हैं, वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं वहाँ पे, उनको सुन लिया जाए। हम कोर्ट का एहतराम करते हैं, जज साहिबान का एहतराम करते हैं, मगर कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जिसमें मैं समझता हूँ बहरहाल तैलीमी इस्लाहात के सफ़र में रुकावट पैदा होती है। शाह साहब, ये बता दीजिएगा कि अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पंजाब ने तो सर्दी की छुट्टियां जनवरी में कर दी हैं, तो सिंध में भी क्या ये होने जा रहा है और अगले साल का शेड्यूल भी आ गया, तो आप समझते हैं कि तमाम जो है उसके मुताबिक पर्ची होंगे, नया साल जैसे अप्रैल में शुरू होगा? और सर, दूसरा सवाल ये है कि हर साल किताबों का इशू चलता है, अभी भी कंप्लेंट्स हैं लेकिन इतनी कंप्लेंट्स नहीं है, तो क्या आपने तैयारी कर ली है कि जो किताबें हैं 1 अप्रैल से जैसे आप ऐलान कर चुके हैं कि नया तारीख साल शुरू होगा, तो क्या बच्चों को किताबें मिल पाएंगी? जी, बिल्कुल मिल पाएंगी, क्योंकि हमने स्टेयरिंग कमेटी, क्योंकि उसका नंबर बहुत बड़ा है, कोई 30-40 के करीब मेंबरान हैं स्टेयरिंग कमेटी में। मैं मुल्क से बाहर था, तो उस दौरान हमने एक एग्जेक्टिव कमेटी बनाई हुई है स्टेयरिंग कमेटी की, जिसमें दोनों सेक्रेटरी जो है, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन दोनों उसमें बैठते हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक बोर्ड भी मौजूद है। उन सब ने कमिटमेंट की है और बोर्ड के चेयरमैन साहबान ने भी कमिटमेंट की है कि एग्ज़ाम्स जो है हम मार्च में कंडक्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोर्ड्स को जो मशीनें OMR और ई मार्किंग की जो प्रोवाइड की हैं उनको, अब उसको वो एक्टिव करेंगे और इस पे एग्ज़ाम होंगे। आप समझते हैं कि तालीमी बोर्ड जो है वो आपके मातहत होने चाहिए, कि स्कूल और कॉलेजेस तो आपके मातहत है, लेकिन वो बच्चा जहाँ एग्ज़ाम देता है वो तालीमी बोर्ड से एक अलग वजारत, एक अलग पोर्टफोलियो है? जी, वो बिल्कुल अलग पोर्टफोलियो है, पंजाब में वो साथ है एजुकेशन मिनिस्ट्री के। ये तो अब इंसानी मामलात है और ये ठीक है, अच्छा है, मैं हूँ एजुकेटर और वो है एग्जामिनर। कॉलेजेस की बात की, सिंध में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का भी काफ़ी फुकदान है, वहाँ निजी यूनिवर्सिटीज़ उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में कराची में मौजूद है, तो क्या अंदरूनी सिंध में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद भी बढ़ाई जाएगी? बीएस प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें मैं graduation करा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बढ़ाने से बेहतर है कि हम BS प्रोग्राम जो कॉलेजेस में हम इंट्रोड्यूस करें, इसको हम मज़ीद स्ट्रेंथन करें और इसको हम बढ़ाएं। यूनिवर्सिटीज़ तो अभी भी मेरे ख्याल में कोई 45 के करीब यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर की बनी हुई है और उनके कैंपसेस भी हैं। OMR के हवाले से सर आप बात कर रहे थे, सर मैट्रिक बोर्ड ने ओवरहॉल कर दिया है पूरे एग्जाम स्ट्रक्चर को, क्योंकि सरकारी स्कूल के अब जब तलबा इम्तिहान देंगे तो उनको पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा, क्योंकि ये बात तय है कि मैट्रिक बोर्ड नई आंसर शीट लेके आ चुका है और उस नई आंसर शीट के अंदर सवाल के हल करने का जो तरीक़ेकार है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सर ये 1 लाख बच्चे होते हैं मैट्रिक बोर्ड के जो गवर्नमेंट स्कूल के। ये देखें प्री एग्जाम जो है उनको डेमॉन्स्ट्रेशन देनी चाहिए, बोर्ड के चेयरमैन साहबान जो है वो ये बात इसको खातिर में रखें। मैं इनसे बात करूंगा इस हवाले से कि उनका जो तरीक़ेकार है एग्ज़ाम्स का, उनका कोई मॉडल पेपर बना के उस पर कोई डेमॉन्स्ट्रेशन दे के वो सोशल मीडिया के थ्रू डिसमिनेट कर दें कि एग्ज़ाम किस तरह होंगे। आजकल के बच्चे ज़हीन है, वो पिक कर लेंगे। मगर मैं एक बात बताऊं, इस इस्लाहात के बगैर ये आप चीटिंग और ये जो नकल का जो मर्ज़ है
इससे आप जान नहीं छूट पाएगी जब तक हम OMR पे नहीं जाएंगे और इस पे ई मार्किंग पे नहीं जाएंगे। 9,000 से ज़्यादा वैकेंसी जाहिर हुई है स्कूल एजुकेशन की, तो जो IBA पास हज़ारों नौजवान जो हैं वो मुंतज़िर हैं कि उनका प्रोसेस चलाया जाए, वो प्रोसेस रुका हुआ है, तो उसके लिए क्या है? 2 महीने बाद मेरे ख्याल से वो एक्सपायर हो जाएगा उनका जो टाइम पीरियड। जी नहीं, उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि वो कैबिनेट में IBA सखर के वाइस चांसलर वो बहुत मेहनती और मैं समझता हूँ उसने MDCAT में प्रूव किया है, पहले 65,000 की रिक्रूटमेंट में प्रूव किया है। और ये अभी दूसरे सूबों के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि 1,20,000 के करीब वैकेंसीज पंजाब में इस वक्त भी खाली है, मगर वो रिक्रूट नहीं हो पा रही। मगर ये IBA सखर की क्रेडिबिलिटी है कि 65,000 जो है उन्होंने रिक्रूट किए और फ्लॉलेस, यानी कोई भी एक बंदा उठ के नहीं कह सकता कि मुझे 2 मार्क का भी फेवर मिली है कहीं से। अभी MDCAT में भी हुआ है। अब वो कैबिनेट में आए थे, मैं खुद कैबिनेट में था, उन्होंने एग्रीमेंट MOU साइन कर दिया है। अब मेरे ख्याल में वो अपना जो अमल है वो जल्दी स्टार्ट करेंगे और ये जो है भर्तियाँ हो जाए। थैंक यू।